গুড মর্নিং, গোলাঙ্কা, আদাব, প্রিয় সাথীরা। বিশেষ করে তীব্রমথার যারা ওরিয়ার আছেন এবং যারা টিসিএফ এর কর্মকর্তাবৃন্দ আছেন, যারা কাজ করছেন, সবার জন্য আজকের লাইভটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং শুনবেন, ভালো করে শুনে বুঝে নেবেন কি বলছি। আর যা বলছি তা সত্য বলছি, একটা মিথ্যা কথা বলবো না, কারণ মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস আমার নেই বা এরকম কোনো কিছু নয়। কারণ তীব্রমথা করি, আইডিওলজি বুঝে করি, মহারাজকে বুঝে করি, মহারাজার আসল চিন্তা কি সেটাকে মেনে চলে তীব্রমথা করি। বন্ধুরা, অনেকে ভাবে যে মহারাজ কি করছে। বর্তমানে বাজারে একটা হই হট্টগোল চলছে, যেন মহারাজ নাকি কোথাও কারোর সঙ্গে জুট করছে, দিল্লিতে আলাপ আলোচনা চলছে। মিথ্যা অপপ্রচার ছড়িয়ে কোনো লাভ নেই। মহারাজ সেটাই করবেন যেটা ত্রিপুরাবাসীর জন্য কাম্য হবে, ত্রিপুরাবাসীর উন্নতি নিয়ে আসবে, ত্রিপুরাবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে পারবে, সেই লক্ষ্যে মহারাজ চলবেন। যাই হোক, অনেকে মহারাজ মহারাজ বলে চিল্লায়, মহারাজের লোক মহারাজ। আসলে সেটাও আমরা জানি কে কীরকম করে চিল্লায়, কারণ বিভিন্ন ধরনের মানুষ এখানে আছে, বিভিন্ন ধরনের ইয়েতে আছে, সব দলেই আছে এরকম। তবে আমাদের দলে এরা টিকতে পারবে না, কারণ আমরা মহারাজার সঙ্গে থাকি, মহারাজার দলকে পছন্দ করি, মহারাজা যেটা করে দিয়েছে, যেরকম গাইডলাইন দিয়েছে সেরকম চলি। আর যারা এর ঊর্ধ্বে উঠে ওভারটে এই সমস্ত কিছু করে, তাদেরকে অবশ্যই তাদের বিচারের আওতায় আসতে হবে, পার্টির রুলস অনুসারে বিচারের আওতায় আসতে হবে। বন্ধুগণ, আমরা অনেক জায়গায় দেখি নতুন নতুন লোক জয়েন করে টিকিটের দাবি করছে। আর এই টিকিট মহারাজ সেই জায়গায় দেবেন যেখানে তীব্রমথার ক্যান্ডিডেট জিতবে, এটা মনে করেন একদম নিশ্চিত। আর কেউ অনেক সময় অনেকে আমাকে বলেন আপনি টিকিট পেয়ে যাচ্ছেন, টিকিট পাচ্ছেন। আমি এরকম বেকুফ নয় যে মানুষ আমাকে গালি দিবে, আগামী 5 বছর আমার গালে জুতা মারবে, এরকম কোনো কাজ আমি করতে যাব না। এরকম কোনো কাজ আমি করতে যাবো না। মহারাজার টাকা খরচ করব, আর মহারাজের টাকা খরচ করে তারপরে বড় লাড্ডু একটা গুড়ার ডিম নিয়ে মহারাজের সামনে উপস্থিত হব, এরকম কাজ আমি করব না। বিশেষ করে যাই হোক, বাকি সমস্ত কিছু মহারাজের উপরে। মহারাজকে ভালোবাসি, মানে মহারাজের আইডিওলজিকে পছন্দ করি, মহারাজের যে থিঙ্কিং, যে গুড থিঙ্কিং, সেটাকে সব সময় পছন্দ করি এবং সাপোর্ট করি। এবং সাপোর্ট করতে গিয়ে মহারাজ যেখানে যেরকম কাজ করার কথা বলবেন সেই লক্ষ্যে কাজ করব। শুধু টিকিট নিয়ে পাগল হলে হবে না। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দলে টিকিটের লড়াই, আমাদের দলে সেটা হবে না। কারণ মহারাজ অবশ্য তার শুভ চিন্তা নিয়ে ত্রিপুরার লক্ষ্যে চিন্তা করবেন, কোনটা ভালো হবে কোনটা খারাপ হবে। তো রিউমার ছড়িয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম, বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের প্রচার চলছে। এই প্রচারের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ। এরকম প্রচার করে লাভ নেই। মহারাজার ভিতরে কি আছে কেউ বলতে পারবে না, আমিও বলতে পারবো না। তবে মহারাজার চালচলনে একটু অনুমান করে বলি, সেটা আশাবাদী আমি, ইনশাল্লাহ তাই হবে। যেখানে যেখানে আমাদের ক্যান্ডিডেট জিততে পারবে না সেই জায়গায় কখনো মহারাজ কি বলে নমিনেশন দেবেন না। কারণ টাকা যাবে মহারাজের, সব কিছু দালাল, বিভিন্ন ধরনের দালাল আছে। বুটের আগে জয়েন করে টিকিট হবে না। টিকিট হবে সেই জায়গায় যে জায়গায় জিততে পারবো, যেখানে কাজ করার আদেশ দিবেন মহারাজ, সেই জায়গায় যাব অবশ্য। এই মহারাজ থ্রো টিসিএফ 4টা বিধানসভার জন্য আমাকে বলেছিলেন, আমি সমস্ত রিপোর্ট ইনশাল্লাহ পেশ করে ফেলেছি, সমস্ত রিপোর্ট দিয়ে দিয়েছি। আর সেই রিপোর্ট অবশ্যই কার্যকর হয়ে গেছে, অবশ্যই আমার মনে হয় কার্যকর হয়ে গেছে, আমি জানি না। তবে মহারাজকে ভালোবাসুন, মহারাজকে মানে মহারাজের আইডিওলজিকে ভালোবাসুন, মহারাজের জন্য কাজ করুন। মহারাজকে কিরকম সাফল্য এনে চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছা যায় সেই লক্ষ্যে কাজ করুন। কিন্তু যারা দালালি করছে তাদের সমস্তদের বিচার হবে। আফটার ইলেকশন 100% বিচার হবে। এর জন্য বলছি, কারণ এখানে
এই দলের মধ্যে লবিবাজি কোনো সিস্টেম নেই। যারা লবি করবে এখান থেকে নেচুরের মতো যাবে, এই করবে সেই করবে, এদের বিচার হবে। মহারাজ অবশ্য বলেছেন, আর সেটার অবগত আমরা করিয়েছি মহারাজকে। প্রিয় বন্ধুরা, আরেকটা কথা বলছি, মনে করবেন আপনারা অনেক কিছু আফতাব আলী কি করছে। আমি কাজ করছি, কোথায় না, কোনখানে করতে হবে, কি করতে হবে, সেটা আমি বুঝে শুনে এবং উপর থেকে আদেশ নিয়ে করছি। সেই আদেশ অনুসারে কাজ করছি, সেই আদেশ অনুসারে রিপোর্ট পেশ করেছি, সমস্ত কিছু। এত দৌড়াদৌড়ি হুড়ুহুড়ির দরকার নেই। ইলেকশন পরে এমনিতেই ত্রিপুরা মতার হাজার হাজার লোক, সমস্ত মাইনরিটি বহুল সিট বলুন আর এসটি বহুল সিট বলুন, অনেক যারা আমাদের বিরোধিতা করেছে, যারা আমাদেরকে গুড়া কাটার লোককে কাজ করেছে, সবাই দেখবেন ত্রিপুরা মতা হয়ে গেছে। কারণ কি জানেন, তখন ত্রিপুরা মাতার মসনদে, ত্রিপুরার মসনদে ত্রিপুরা মথা থাকবে, সেই লোককে দেখবেন শুধু জয়েনিং আর জয়েনিং চলছে। যেরকম বিজেপি 2018-তে আসার পরে 3 মার্চের পরে হাজার হাজার লোক নতুন বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের অপকর্ম চালিয়েছিল, যার কারণে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে বিজেপিকে ত্রিপুরার মানুষ চাইছে না। সেই অপকর্ম থেকে আমরা অবশ্য বিরত থাকবো ইনশাল্লাহ। জিরো টলারেন্স, জিরো ভায়োলেন্স, সব কিছু থাকবে। ত্রিপুরা মতার সরকারের সমস্ত কিছু থাকবে। এর জন্য বলছি, যারা এইসব করে কুকর্ম করে ঘুরাচ্ছে, এদের বিচার হবে। নাম্বার 2, আজকে জয়েন করে, আজকে ত্রিপুরা মথায় একা জয়েন করে কালকে টিকিট বাবা হবে না, এটা কোনো সিস্টেম নেই। এটার কোনো সিস্টেম নয়। কে কি বলবে সেটা আলাদা ব্যাপার। অবশ্য আমার টিসিএফ এর সুপ্রিমো তাপস দে মহাশয় এবং আমার দলের সুপ্রিমো মহারাজাজি সব কিছু জানেন, A to Z সব সময় আমরা রিপোর্ট পেশ করতে থাকি। যেহেতু রিপোর্ট পেশ করার জন্য বলেছেন, রিপোর্ট পেশ করতে থাকি। এর জন্য বলছি, আপনারা দয়া করে পার্টিকে বদনাম করার চেষ্টা করবেন না। বদনাম করলে आगामी दिन खैर नहीं रहेगा। क्लियर बात मैं कह रहा हूं, खैर नहीं है, आप लोग का खैर नहीं है। क्लियर कह रहा हूं, खैर नहीं है। सब जानते हैं, पैसा वाले पैसा दे करके ज्वाइन कर रहा है, और ज्वाइन करके कल जब त्रिपुरा माता का टिकट नहीं होगा तब देखेगा कोई नहीं है, कोई नहीं है। फिर इलेक्शन हो जाएगा, फिर इलेक्शन के बाद जो है ना, इलेक्शन के बाद फिर देखना एकदम त्रिपुरा मथा बोल के चिल्लाना शुरू कर दे। हम तो त्रिपुरा मथा में था, काम में नहीं है लेकिन नाम में बहुत बड़ा है। अरे महाराजा के लिए अगर कुछ करना है तो मेरा एक किडनी है, एक किडनी दे सकता हूं। हमको क्या, हम टिकट के लिए पागल नहीं है। ये दलाल लोग जो है ना, ऐसे अगर हम टिकट के लिए, कसम अल्लाह कसम, ऐसा काम नहीं करूंगा जो काम करने का बाद जो है ना पछताना पड़े और महाराज के पास शर्मिंदा होना पड़े। ऐसा काम नहीं करूंगा। महाराज जी जो कहेंगे वही करूंगा। और इसलिए मैं जितना ओरियार से और जितना त्रिपुरा मोथा की जो क्या बोलता है कर्मकर्ता लोग है, सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग काम में लग जाइए, इंतजार मत कीजिए। टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। महाराजा को गिफ्ट दीजिए, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी को गिफ्ट दीजिए। हम जो दे नहीं सकता ये हम बोल दिया, हम जो गिफ्ट नहीं दे सकते वो हम बोल दिए। इंशाल्लाह पहुंच गया ये बात, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग काम कीजिए, दलाली मत कीजिए। मैं देख रहा हूं काम से ज्यादा दलाली है। उसका घर में खाना है आ रहा है, उसका घर में खाना है आ रहा है। अरे टीसीएम के खाक बनाने के रखा है इधर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप लोग होशियार हो जाइए। और जो है ना, जो टिकट मांगता है इसको हमारे पार्टी में अभी जरूरत नहीं है। हम जो लोग 2 साल से 3 साल से काम कर रहा है, ये लोगों क्या जरूरत है, किसको कितना बड़ा सर्टिफिकेट दे। पॉलिटिक्स एक राष्ट्रविज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है, वो राष्ट्रविज्ञान है। उसको समझने के लिए इतना ज्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं है। शिक्षा वाले के काम है स्कूल में जाके पढ़ाई कराओ, स्कूल में जाके पढ़ाई कराओ, बच्चों को, लोगों को, समाज को बनाओ। लेकिन पॉलिटिक्स में जो है ना, उतना ज्यादा लिखाई पढ़ाई का जरूरत नहीं। पॉलिटिक्स दूसरा राष्ट्रविज्ञान है, राष्ट्रविज्ञान समझना चाहिए। पद लेकर के बैठा हुआ है। ऐसे एक टाइम था जिस टाइम में अपना आदमी कम था, किसी को भी पद दे दिया, किसी को भी।
अरे संगठन को मतलब आगे ले जाने के लिए किसी को, अरे महाराज किसी को देख के नहीं आ रहा है, मेरे को देख के इस दौर में जो है ना, त्रिपुरा मोथा में कोई हमको देख के नहीं आ रहा है। त्रिपुरा मोथा में सिर्फ हमारा महाराज को देख करके आ रहा है। जो लोग त्रिपुरा मोथा में काम करता है सब महाराज को देख करके काम करता है। और महाराज ऐसे काम नहीं करेगा जो काम पिछले कुछ साल में हुआ, जो बदनाम पिछले कुछ साल में हुआ, जो त्रिपुरा को जो है ना बिकाया गया, उसी तरह का कोई काम नहीं करेगा महाराज। इंशाल्लाह मैं बोलता हूं, मैं छाती ठोक करके बोलता हूं, महाराज को पैसा की जरूरत नहीं है। महाराज को पैसा की जरूरत नहीं है, महाराज को वॉरियर्स की जरूरत है। महाराज को जो है ना दिल वाले की जरूरत है, महाराज का साथ रहने वाले की जरूरत है। दलाल की जरूरत बहुत कम है। इसलिए मैं कहता हूं आप लोग संभाल जाइए और संभाल करके काम करिए। तो फिर एक बार वो कह रहा हूं, जो सीट, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हम महाराज को मतलब भेंट नहीं कर सकते हैं, पुरस्कार दे नहीं सकता है, साफल्य ले आ नहीं सकता, इस सीट में महाराज टिकट, इसका मतलब नॉमिनेशन, इलेक्शन लड़वाएगा नहीं। और बाकी आप बोलेंगे वोट कहां देना है, वो अगली दिन में महाराज इंशाल्लाह बता देगा, सबको बताया जाएगा अपना ग्राउंड लेवल। तो इसलिए कहता हूं मैं, आप कोई फोन नहीं करना भाई, अभी डिस्टर्ब मत करना। अभी फेसबुक लाइव में फोन करने से ये होता मैं बात कर लेना। तो मैं ये कह रहा हूं, हम ये एश्योरेंस मिल गया है, जहां में हमारा कैंडिडेट जीतेगा नहीं वहां हमारा कैंडिडेट नहीं होगा। जहां हमारा कैंडिडेट हम जो है ना वो दूसरा जो पार्टी है 10-12 लेके घूम रहा है, ऐसे काम नहीं करेंगे, इंशाल्लाह नहीं करेंगे। और त्रिपुरा के लोगों की भलाई के लिए जो काम होगा वो महाराज करेंगे। और बाकी जो फिर बोल रहा हूं जो महाराज क्या करेंगे क्या नहीं, इसके बारे में प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह बहुत मीडिया है, सब में जो है ना प्रचार, महाराज इसका साथ झूठ कर रहे हैं, महाराज इसका साथ अलायंस कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। महाराज का जो आइडियोलॉजी है इसमें आपको मतलब ये करना पड़ेगा, लिखित करना पड़ेगा, ये महाराज का कहना है हर टाइम। क्योंकि अपना भविष्य, अपना प्रजन्मों की जो अगली भविष्य है उसको सुरक्षित रखना है, किस तरह रखना है ये महाराज जानता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम तो अभी बताएंगे महाराज, जब तुम साबरू में चला जाओ हम चला जाएंगे, क्योंकि टिकट ये नहीं। अरे यार जब टिकट के लिए, सिर्फ टिकट के लिए दौड़ रहा है, अगर हार जाओगे तो कुत्ता जैसे बनता है, महाराज के सामने जा नहीं सकते हो ना, तो फिर क्यों टिकट मांग रहा है। हमने अपना बात रख दी है, ये एकदम असत्य बात नहीं है, सत्य बात कह रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, जितना त्रिपुरा सा ओरिया है, जितना बंगाली ओरिया है, जितना मणिपुरी ओरिया है, त्रिपुरा मथा की सब जो है ना अपना काम करो, दलाली मत करो। मैं देख रहा हूं दलाली में जो है ना कुछ त्रिपुरा सा लोगों को भी शामिल किया जा रहा है हर जगह में। तो इसके मतलब है ये लोग क्या करेगा, थोड़ा 2-4 हजार 5 हजार रुपया पाएगा, मिलेगा, ऐसे ही करेगा। ये पिछला में हमने देखा है, एनसी देवबर्मा का पार्टी, जो स्वर्गीय एनसी देवबर्मा जी था, उनकी पार्टी में ऐसे ही हुआ था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, प्लीज ऐसा मत कीजिए, काम कीजिए और महाराज का अपना एक्चुअल आइडियोलॉजी जो है ना उसको समझने का कोशिश कीजिए। त्रिपुरा मोथा ऐसे नहीं होता है, आज ज्वाइन किया और क्या बोलता है, और टिकट नहीं मिला तो हम त्रिपुरा मोथा नहीं। अरे नहीं मानो, हरामजादो, कम से कम ये शर्म करो, ये हमारा महाराज है, शर्म करो। दुख का बेईमान कितना मैंने देख लिया है। तो इसलिए बोल रहा हूं मैं, जय हिंद, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और सबको ये बोल रहा हूं, सारे लोगों को ये बता दो सबको, जहां जहां हमारा कैंडिडेट सक्सेस नहीं होगा वहां कैंडिडेट नहीं दिया जाएगा इंशाअल्लाह। मैं बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं, असत्य नहीं बोल रहा हूं, ये क्लियर सबको बता देना। जय हिंद, त्रिपुरा मथा लॉन्ग लिव, महाराज जी लॉन्ग लिव। और महाराज का सब बोलता है, महाराज लॉन्ग लिव। महाराज को इतना टेंशन देता है, इतना प्रेशर करता है, भाई किस लिए भाई ऐसे, ये मोहब्बत ऐसे ही होता है, मोहब्बत ऐसे ही होता है। हजार लोग हर टाइम पीछे घूमते रहता है। अरे भाई ये क्यों भाई, अरे मोहब्बत ऐसा है, अभी वो नहीं है, खुशी का समय
में सब आ जाना, दुख का समय में सब आ जाना। लेकिन अब हम जो है ना, एक पुल का बीच में खड़ा है, ना इधर है ना उधर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, सब काम पे लग जाइए, काम पे लग जाइए सब। एक बंगाली ने अपना महाराज की त्रिपुरा मोथा के लिए अपना प्राणों की आहुति दे दी, इसका भी कुछ लिहाज कीजिए। और प्रंजीत नमोशूद्र जो है, वो जो है ना, अपना महाराज के दौल करने का बजाय, अपना महाराज के त्रिपुरा मोथा करने के बजाय उसने अपना बलिदान दिया है त्रिपुरा मोथा के लिए। तो उसी का लक्ष्य रख करके जो है ना काम करना है। इसका जो शहीद जो है ना व्यथा जाने नहीं देना है, इसको व्यस्त जाने नहीं देना है, सक्सेस करना है, फिर इसका आत्मा को शांति मिलेगा। जो हमने जो काम शुरू किया था, इस काम को हमारा साथियों ने जो है ना सक्सेस कर लिया। इस दिमाग में ये रखो दिमाग में। सिर्फ टिकट 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 टिकट, ये इधर से उधर। ज्यादातर आप देख रहा हूं मैं, ज्यादातर टिकट वाला पागल वो जगह में है जहां में माइनॉरिटी ज्यादा है, वहां वाला टिकट वाला ज्यादा है। जहां में जो है ना माइनॉरिटी वॉरियर्स ज्यादा है, वहां टिकट। बेईमानी मत करना, मैं कह रहा हूं, बेईमानी मत करना, बेईमानी मत करना। इसलिए क्लियर कह रहा हूं, इतना लंबा चौड़ा मैं भाषण दे दिया। क्षमा चाहता हूं सबसे, और सबसे फिर एक बार कहना चाहता हूं, ज्यादातर जहां में टीसीएफ एरिया है वहां ज्यादा टिकट मांगने वाला है। और हम जानते हैं इंशाअल्लाह, जहां जहां बोला रिपोर्ट देने के लिए हमने भेज दिया, सब कोई नहीं होगा। जहां में जीता जाएगा, जीत मिलेगा, वहां हमारा कंटेस्टिंग होगा, चाहे बीजेपी के साथ या तो कांग्रेस सीपीएम का झूठ के साथ। किसी से हमारा कॉम्प्रोमाइज नहीं है। महाराज जो है ना अपना आइडियोलॉजी लेके किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। ये प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया क्या क्या बोल रहा है, सारा बेईमानी है, सारा बेईमानी है। जय हिंद, त्रिपुरा मोथा लॉन्ग लिव, महाराज जी लॉन्ग लिव। आप अच्छा रहिए, आप खुश रहिए। आपके खुशी के लिए अपना प्रणजीत नमोशूद्र के बलिदान जो है ना, उसको हम लोग भूलेंगे नहीं। और हम भी, हमारे को भी बहुत थ्रेट आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, उसमें हम डरने वाला नहीं है। हम फौजी थे, मर जाएंगे तो कुछ नहीं, क्या है, पहले तो इतना साल लड़ाई करके आया, फिर अब मर जाएंगे तो क्या है, उम्र हो गया, 54 हो गया। थैंक यू, किडनी भी एक नहीं है। थैंक यू, जय हिंद।